see my screen? So is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay, great. Okay, so this is the file that we are going to use today, and today is the second day. So before starting with the today's agenda, today we are going to speak about cell referencing and freezing. I'm just revising what we did yesterday in the yesterday's class so that people know what we have done yesterday. So can anyone recall what we did yesterday? Those who attended my class yesterday? You can write in the chat box also. Okay, so we talked about the Excel screen and we talked about the different terminologies that is used in Excel. So first 5 minutes, I'm going to revise what we did yesterday, and then we are going to start with today's session. So when you open Excel for the first time, you will see a blank screen. Control N is a shortcut key to open any Excel, new Excel, and you see a book one. This is basically called as a title bar. Then the second line that you see in the Excel row is basically called tab, and you have different tabs in Excel like home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer, and all. Alok's tabs is appearing in my Excel. It will not appear in your Excel because this is something which I have introduced, which I have created, which you can also create. Okay, so yesterday we talked about how we can customize our ribbon. So after the tab, when you click on the tab, you see different commands on the tab that is called as a ribbon. So ribbon has different commands, and then below the ribbon, what you can see is yesterday I told you that you can hide auto ribbon or you can keep the ribbon intact by showing it always. Okay, so when I click on data tab, I see all the commands which are there in the data tab ribbon. Okay, now this is called as quick access toolbar, where you can use any of the button which you like. Suppose I want to highlight these cells with yellow color. I don't have to go to home tab. I can be in the data tab and I can just click on this fill button and I can fill. If I want to put a red color font, I can put a red color font. And now suppose I want to merge these cells. So I have introduced merge also here. I think it is there. Uh, this is clear rules. Okay, merge is not there, but what is the shortcut key? Alt H M C to merge and center, and then we can write down it is day 2 of Excel course. Okay, and suppose I want to bring it into center, then I don't have to touch the mouse. I use Excel without touching mouse. So how we can bring it to in the center? Can anyone help me with the shortcut keys? How to bring it into the center, in the middle? I want to bring it into middle. It is already in center. So what will be the shortcut key? Which tab we have the alignment? In which tab do we have the alignment keys? Tell me in the chat Sir, box. Alt AM. Alt A M. Okay. HAM. No. HAM. Yes. Alt H A M is the right answer. Alt H A M. So basically, it is saying that you go to home tab first. In the home tab, you go to alignment section. So you press A, and in the alignment, you are left with six options: A, T, A, and AB. So T means top, M means middle, B means bottom, L means left, C means center, and R means right. So right now, the text is into the center and it's into the middle. So these two are activated. You can see there these two are activated. Now, if you want to move it to the left, so you can press Alt H A L.
it will move to the left. And if you want to bring it to the top, you can say Alt H A T. It will go to the top. Okay. I again want to bring it to center and middle. So Alt H A T, Alt H A C, Alt H A M. Now I want to increase the font size of this. So what would be the shortcut key to increase the font? Font का size बड़ा करना है बिना mouse को touch करे कैसे कर सकते हैं? What will be the shortcut key to increase the font size? Alt HAP HP Alt H, Alt H P. F S. Font size. Okay. So Alt Home Font F S. So we are into the font size box, and now the current font is 20. We can make it 36. So I can type down 36, and I press enter, and you will see that the font has increased. Okay, font size increase. I want to make it bold. I can normally people know Control B is the shortcut key, but there is one more shortcut key of bold. What is the other Yes, shortcut sir. key? Control 2. H. You can press Control 2 also, or you can press One. Alt H B, Alt H1 to bold. Yes, sir. Okay, so Excel is very amazing software wherein tool wherein you have multiple commands for the same feature. So we can press Control U to make an underline, and we can press Control 2 also, Control 3 also to italic, and Control 4 to remove an underline or place an underline. If you want to strike, you can press Control 5. So these are different shortcut keys, but today the agenda is cell referencing and formatting. That is what we are going to do. But this was just a revision of what we did yesterday. Then we also talked about how you can. And there is one more interesting thing in Excel, that when you go to the review tab, you can click on the workbook statistics, and it will show you that how many cells are occupied in the sheet. If you have any formulas, how many formulas are there, how many tables are there, and what is the size of the Excel where the data is there. So this is a blank file which we opened, and we just occupied column A1 to E5. So that is the end of our Excel, and is showing the end of sheet is at E5. Okay, and cells with data is only one cell. But why it is only saying one cell? There are so many cells which is occupied. Can anyone give me one cell? Merge and center. Yes, we have merged all the cells. So although there are cell A1 to E5, but since we have merged, it is counting it as a one cell only. Okay, very good. And by default, Excel has 3 sheets. So we are seeing 3 sheets. So that was all that we did yesterday. Okay. And then in the file menu, when you go to more and options, you get to see that in the formula bar, if you turn this R1C1 style, if you put a tick on it and you click on OK button towards the end, what will happen? What will happen, guys? If you click on R1C1 and press on OK, we are just revising what we did yesterday. ABCD would turn into number. Very good. So ABCD, that is the column headings which are there in alphabet, it will turn into number. And now if you press Control and right arrow key, you will go to the last number that is there in the series. And you will see that the last number is 16,384. That is the number of columns. And you press Control and down arrow key, you will come to the last row, that is 10,48,576. Okay. So again, you want to change it. Again, you go to the file menu. And how do you go to the file menu? Alt F. And then to go to the more, I'll press 00, which is doing showing me that option. I can use the arrow key to move down to options. I can press enter to open it. And once I'm in the dialog box, I can use the arrow key or the tab key to move across the options, different options. So I'm pressing tab. I want to uncheck this. So I have not used mouse anywhere. So you can see that there is no mouse. I'm just using this keyboard. Okay. So when I press space bar, it will uncheck this. And then you can again press the tab key and move down. Okay. And how do we move backwards? If you press backspace and tab, it will move backward.
Okay, so Alt F00 options and then formula bar. Formula bar, shift and tab you have to press, and then we go to this R1 C1, we move down, we reach OK button and we press it. Okay, and now we have the alphabets in place. Okay, so this is what we did yesterday. Now we are coming to today's topic, that is cell referencing and freezing. Okay, these are the terminologies that we see. That title bar is there, menu bar is there, ribbon is there, quick access toolbar is there, then name box that contains the address of the cell. Formula bar tells you about the formulas that you put in the cell. Control A, you can select the entire sheet. Uh, rows are numbered and columns are alphabets. The rows are called horizontal and columns are called vertical. Then we have a navigation bar where we can navigate, and then in the end we have a status bar which talks about the different formulas and functions and different this thing. I told you that in Excel also you can come to know whether your caps lock is on and off, or num lock key is on and off by just clicking on the clicking on it on the status bar, and you can check on these caps lock and nums lock. And once you put a check lock, then you can see whether the caps is on or not. Okay, so this is a feature which many people don't know, but which you can use. Everyone, please be on mute if you have any. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, now am I audible now? हमारी मेरी आवाज? Yes, sir. सर यस सर. चलिए ठीक है, ठीक है. अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है सेल फ्रीजिंग एंड रेफ्रेशिंग. ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, लेट मी टेल यू सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर लर्निंग एक्सेल. ठीक है, और वर्किंग ऑन एक्सेल. तो पहला है नेवर टच डेटा. Okay, so please be on mute. Don't disturb the class. We have some co-host. Please note that people are not. The mic is not on. Okay. चलिए. So never. हाँ मेरे पास ही है, बट मैं क्लास को कंट्रोल कर लूँ, बाकी लोग हैं माइक कंट्रोल करने के लिए. चलिए. Never touch the data. ठीक है. So we don't have to touch the data. That means you don't have to. You are obviously working on the data, so you have to work with the data. But if you have downloaded a data from a company's website or some crucial data is there and you are exploring it, or you are working on formula, it is always better to keep a copy of the data, to keep a backup of the data, so that if something goes wrong, at least you have a copy to which you can go back and copy the original data. ठीक है, गलती से कुछ डिलीट हो जाता है तो अगर आप उसको नहीं ला पाते तो आपके पास एक कॉपी होना चाहिए हमेशा डेटा का. तो पहले एक कॉपी क्रिएट करके रखें. नेवर टच द डेटा का मतलब यहाँ पे हो गया क्रिएट अ बैकअप ऑफ द डेटा. दैट मींस कॉपी इट. Then try to correlate problem with your knowledge. Okay, so Excel is a huge ocean of knowledge. Okay, and there are so many functions and formulas which you can never master in one life. ठीक है, आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे अगर एक्सेल सीखना है तो. ठीक है, लेकिन एक जन्म में हम उतना सीख सकते हैं कि हमारा ये जन्म निकल जाए, मतलब हम काम कर पाए इस पर. ठीक है, so what you have to do is you have to correlate your problem with your knowledge of Excel commands, functions. ठीक है, आपको प्रॉब्लम को रिलेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन से. Then think dynamic, think future. So why think dynamic? Because Excel itself is a dynamic function. It is not static. तो Excel डायनेमिक कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि विच इज एवर चेंजिंग, एवर एक्सप्लोरिंग. आप फ्यूचरिस्टिक होके सोचते हैं. ठीक है, Excel 85 में स्टार्ट हुआ था. 95 बहुत पॉपुलर हुआ, फिर 2003 आया, 10 आया, 13 आया, 16 आया, 19 आया, 21 आ गया, एंड 365 इज आल्सो देयर, राइट.
So Excel is futuristic, and you see that new commands keep on coming. There are dates which are coming. So we have to be very dynamic in our approach. Then use standard formulas and functions which are there. Like sum is one function which every Excel user is using. Okay. Enter function arguments through references that we are going to talk today. Okay, how to use the reference and not type the variables in the formula. Follow syntax of the functions properly. Function either in starting or end. Columns don't mix. Okay, so there is some Sir, problem your with voice is the not audible. spellings here. हमें तो ठीक आ अभी ठीक है? Is it better now? हमें आ रहा है? हमें तो ठीक आ रही है। ठीक Yes, है, sir. चलिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है use, है ना? हम am using adding the word use function either in starting or in end. Columns don't mix. That means if you are using any formula or function, either use it in the starting or at the end of the table. If you if you insert any column and put any formula in the between, it might give you some trouble. ठीक है? तो जो भी आपको डेटा है उसके साइड में डेटा खत्म होने के बाद आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। Use or one or two light colors in one single sheet, rest shades. So when you are using shading your sheets and you are using multiple colors, it is always recommended to have a single color and different shades. Like in this Excel also, I have put a shade over here. तो एक single shading मैंने दी थी because I wanted to highlight the keywords और उसके बाद only one color I used. Okay, so these are some principles which you should know, remember while working on Excel. Okay, now I come to the second sheet. And in this sheet, you will see that there are lots of tables which are there. Some are having some numbers, some are empty. And with the use of this table, we are going to understand what do you mean by absolute, relative, and mixed referencing. Okay. Now, before I start explaining, can anyone tell me what do you mean by the word reference? Layman की जैसे समझेंगे, reference का मतलब क्या होता है और कहाँ काम में आता है? ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? रेफरेंस एड्रेस, बताइए। एड्रेस में, ओके, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस को रेफरेंस बोलते हैं। ये एक्सेल के रिलेशन में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्सेल को भूल जाओ। रेफरेंस का मतलब बताओ, रेफरेंस कहाँ काम में आता है, ये कब काम में आता है रेफरेंस? संदर्भ होता है इसका। Good relationship. इन So looking at something for Relationship. information. Okay, when you're looking for something for information, you can use a reference. Okay, I will say that when you are applying for a job and you are putting someone's reference कि इस फलाने इंसान ने मुझे रेफर किया है, ठीक है, तो उसको भी हम रेफरेंस बोल सकते हैं। दैट मीन्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम प्लेस, ठीक है, सो दैट मीन्स रेफरेंस। ओके, नाउ एक्सेल आल्सो रेफर टू द एड्रेस ऑफ द सेल बाय द सेल एड्रेस, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी हम कौन से सेल में हैं, व्हाट इज द एक्टिव सेल, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, कैन एनीवन टेल मी? E6. E6, वेरी गुड। सो E6 इज द करंट एड्रेस, ठीक है। आपने कैसे पता लगाया? एक तो यहाँ देखिए कि ये E कॉलम है और 6 रो है, और जो थोड़े से स्मार्ट लोग हैं वो सीधा ही इनकी नजर जाएगी नेम बॉक्स में और वहां से पढ़ के बता देंगे सर E6 में है, ठीक है। नाउ सपोज आई मूव टुवर्ड्स द राइट और मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ। अब आपको नेम बॉक्स नहीं नजर आ रहा है। अब बताइए आप कौन से रो और कॉलम में है? कॉलम तो ऊपर से बता देंगे, रो बताइए अब हम कौन से रो में है? कैन एनीवन टेल मी एट विच रो आर वी ऑन नाउ? Which row number are we on? 12, 12 sir, Row number 12. 12. Okay. Now, can you guess now? सर आप साइड में जाओ, राइट साइड। तो ये कौन सा स्लाइड बार सेल? को ड्रैग करिए। स्लाइड बार को ड्रैग करें किधर? लेफ्ट में? नहीं सर, उसको बस टच करिए, वो पता चल जाएगा।
अच्छा, स्लाइड बार को टच करती है, ये टच करती उसको है, नहीं सर, उसको राइट वाले। इस वाले को टच करें। अच्छा, हाँ 29 पे। तो 29 वेरी sir. स्मार्ट। ठीक है, रो नंबर 29 एंड कॉलम नंबर एजी। बहुत मजा आ ठीक गई है, बिल्कुल। चलिए अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, रो लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड पुट एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 51। ठीक है, अभी आप क्या बता रहे थे 29 आ रहा था। ठीक है, अभी लेफ्ट में मूव करते हैं स्लाइड बार से और मैं इसको जूम हटाता हूँ। देखिए रो नंबर क्या है 51 है, 29 कौन बोल रहा था, 29 वाज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर जो 29 दिखा रहा था वो क्या है, व्हाट इज दिस 30, व्हाट दिस 30 मींस, ये 30 क्या है बताइए। इफ यू लुक अक्रॉस द एक्सेल यू विल गेट द आंसर। आपको थोड़ा Sir, सा लेफ्ट 30 is the top row number. Exactly, very good. So 30 is the top row number which is visible. तो ये जो बार है नेविगेशन बार, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि आप इसको जब मूव करेंगे तो ये कौन सी रो पे आपको ले जाएगा। मतलब यहाँ से हम 30 रो तक दिख रही है हमारे को, 30 से ऊपर करेंगे 29, 28, 25, 26 ऐसे ये दिखाता है। ठीक है, और जब आप इसको मूव करते हैं तो ये कॉलम ए पे है, ये आपको नेविगेट करके कहाँ आपको छोड़ना है इसको, वो कॉलम आपको वहां पे ये दिखने लग जाए। ठीक है, सो एक्सेल इज वेरी डीप। ठीक है, आपको बहुत माइन्यूटली इसको पढ़ना है और हम उसको साथ में सीखेंगे। चलिए, ठीक है, नाउ रेफरेंस की बात चल रही थी, तो रेफरेंस मींस द सेल एड्रेस। ठीक है, एंड देयर आर थ्री वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड विद रेफरेंसेस, दैट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट की, या रिलेटिव की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे एब्सोल्यूट की। सो आई एम टीचिंग द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेटिव। ठीक है, अब रिलेट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एक तो होता है रिश्तेदार, ठीक है, रिलेटिव्स, और एक होता है रिलेट, कैन यू रिलेट टू दिस, मतलब क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेट करने वाला रिलेट है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिव वो वाला रिलेटिव नहीं जो हमारा रिश्तेदार होता है, रिलेट वाला वो रिलेट जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, so now I'm putting a simple formula which everyone knows, whosoever is using Excel or not using Excel, ये फॉर्मूला ऐसा है जो सबको ही पता होता है, फंक्शन, नॉट अ फॉर्मूला बट अ फंक्शन। सो इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम फंक्शन मैंने लिखा, ओपन ब्रैकेट करा, नाउ आई वांट टू सिलेक्ट दीस टू नंबर्स, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस नंबर एंड आई हैव सिलेक्टेड दिस नंबर एंड आई हैव क्लोज्ड द ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या लिखा दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार में, इज इक्वल टू सम B6 एंड C6। नाउ टेल मी व्हाट इज B6 एंड C6। B6 और C6 क्या है, ये सेल का एड्रेस है जिसमें वैल्यूज हैं 10 और 5। ठीक है, ये सेल का रेफरेंस है जिसमें वैल्यूज हैं 10 और 5 कॉलम 1 और कॉलम 2 में। इसको हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यू विल गेट द आंसर एज 15। ठीक है, what could be the other way to take the total of these two number, the other way could be to write 10 plus 5। ठीक है, now is there any reference in this, यहाँ पे आपने कोई रेफरेंस डाला है इसका, No, sir. No, sir. there is कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज है। ठीक है, सपोज आई राइट B6 No, plus sir. C6, if I write B6 and C6, will I get the answer as 15? No. Yes, yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So tell me that I have put B6 plus C6 here, and here I'm writing sum B6 comma C6 and I'm putting enter. Both are giving me 15 as the answer. What is the difference between these two? What is the difference between this and this? सर एक में फंक्शन लगा है और एक में फॉर्मूला। Very good. कौन है ये, किसने आंसर दिया है? Tell me your name. अंजलि है। अंजलि। तो चलिए अंजलि ये बताइए कि कौन सा वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला फंक्शन है? सर इज इक्वल्स टू B6 प्लस C6 ये फॉर्मूला है और ये सम वाला फंक्शन है। वेरी गुड। सो यहाँ से हम
एक्सेल स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है. मेनी पीपल डोंट नो दिस एंड मेनी पीपल हु हैव बीन यूजिंग एक्सेल फ्रॉम सो मेनी इयर्स दे आल्सो डोंट नो दिस. बट उन्हें पता होता है कि ये कुछ तो फॉर्मूला होता है, कुछ तो फंक्शन होता है. फॉर्मूला फंक्शन. बट डिफरेंस क्या है, ये बहुत इजी है. तो फॉर्मूला इज समथिंग व्हिच यू डिफाइन. ठीक है, आप खुद डिफाइन करते हो, फॉर्मूला होता है. जैसे मैंने लिखा है b6 प्लस c6, मैं b6 इंटू c6 भी लिख सकता हूँ, मैं b6 डिवाइड बाय c6 भी लिख सकता हूँ. एनीथिंग आई कैन राइट. दैट इज व्हाट आई हैव गिवन टू एक्सेल कि भैया ये आपको करना है ऑपरेशन. तो उसे बोलते हैं फॉर्मूला. फंक्शन क्या होता है, which is already predefined and you cannot change anything in it. That means अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, तो टोटल करके टोटल नहीं होगा, है ना. लेकिन सम क्या करता है, टोटल ही करता है. लेकिन हम टोटल लिख रहे हैं तो कुछ आ नहीं रहा, सम लिख रहे हैं तो देखिए ये fx बना हुआ आ गया और लिख रहा है एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स. दैट मीन एक्सेल ने डिफाइन कर रखा है सम को. ठीक है, सम के नाम से कि ये एक फंक्शन हमने बना दिया है. ये फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी नंबर आप सीरीज में सेलेक्ट करोगे, सपोज आई सेलेक्ट ऑल दीज नंबर्स, I select this range from B6 to C11, it will take a total or summation of all these numbers. ठीक है, अब एक बात बताइए. The functions मैंने are predefined and formulas are not predefined. वेरी गुड. सो फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड, फॉर्मूलाज आर नॉट प्रीडिफाइंड. ठीक है, तो ये एक और डिफरेंस हो गया. अब एक बार बताइए, मैंने यहाँ पे सम का फंक्शन लगाया है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? यहाँ पे मैंने b6 प्लस c6 लिखा है लेकिन आंसर नहीं दिखा रहा, इक्वल टू भी लगाया है, क्या प्रॉब्लम हो गई? सब वो पूरी रेंज एक ही नंबर है. क्या क्या पूरी रेंज एक ही नंबर? सर वो पूरी रेंज को एक सिंगल एंटिटी समझ रहा है ना, इसलिए सम करने के लिए मेरे साथ 2 एंटिटी होनी चाहिए. सर पूरी कॉमा एंटिटी लगाना होगा वहाँ पे कहाँ लगाना होगा कॉमा? सर B6 और C11 के बीच में. b6 और c11 के बीच में अगर कॉमा लगा दिया तो ये सिर्फ b6 और c11 दो नंबर का टोटल करेगा. मुझे पूरी रेंज का मतलब b6 से लेके b11 तक, c6 से लेके c11 तक जितने भी नंबर हैं उन सब का टोटल लगाना है. तो क्या करें बताइए? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन एक जगह फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज सो? If you don't know, you can write the answer don't know in the chat box. अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं. देखिए कई चीजें हमें नहीं पता इसलिए हम ये क्लास में आए. अगर हमें पता होता तो हम इस क्लास में क्यों आते? तो हम कुछ सीखने ही आए हैं. तो अगर आपको नहीं पता है, यू कैन राइट डाउन डोंट नो. तुक्के मारने से अच्छा है लिख दो डोंट नो. सर इसमें सम प्रोडक्ट यूज होगा. नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या यूज होगा. सम प्रोडक्ट क्यों यूज होगा? सम प्रोडक्ट क्या करता है? सम प्रोडक्ट तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेगा और उस आंसर जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों नंबर का उसको सम कर देगा. So that is again a different function. But let me give you the answer for this. Okay, I have pressed a key in the keyboard and the key is Control and Tilt key. ठीक है, Control and Tilt. मैं फिर से दबाता हूँ इसको, Control and Tilt. और आप देखिए अब आपको आंसर दिख रहे हैं. ठीक है, 15 and 331. You can see the answers now. ठीक है, मैं फिर से प्रेस करता हूँ एक और की, आपको मेरे की स्ट्रोक्स दिखाई देंगे स्क्रीन पे. जस्ट सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, यू विल बी एबल टू सी माय स्ट्रोक्स. सो कंट्रोल और टिल्ट की मैंने प्रेस करा. तो कैन एनीवन गेस व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस की? कैन एनीवन गेस व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम प्रेसिंग दिस की? एंड वेयर इज दैट की? एस्केप के नीचे वाला जो की होता है उसको जब कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो देखिए कुछ कुछ चेंज हो रहा है. ओके, फनी आंसर इन द चैट बॉक्स. चलिए, इट इज सिंपली वी आर डिस्प्लेइंग द फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, फॉर्मूला टैब में एक होता है शो फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला, और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल एंड टिल्ट. सी एक्सेल इज अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर. व्हाई? बिकॉज एक्सेल खुद आपकी मदद करना चाहता है. प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते. ठीक है, तो व्हेन यू गो टू फॉर्मूला बार,
in the formula tab you have this show formulas, और यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी खुद से लिख के बता रहा है कंट्रोल प्लस टिल्ट। ठीक है, आधे लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये है कहाँ, क्योंकि पहली बार ही काम में लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इतनी मेहनत भी आप मत कीजिए, जब आपने क्लास लगाई है तो इसका मतलब यह है कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सब चीजें बताऊं। ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू, मतलब स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब ये आपने देखा कंट्रोल टिल्ट के साथ ये फॉर्मूला शो करता है, तो फॉर्मूला शो कर रहा है, वापस से दबाएंगे फॉर्मूले का रिजल्ट बताएं। ठीक है, अब बात हो रही थी रिलेटिव फंक्शन की और एब्सोल्यूट फंक्शन की, तो हम रिलेटिव की बात करें। अब देखिए ये हमने एक फॉर्मूला लगाया B6 + C6, मैं ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया है कॉलम 1 कॉलम 2 को, तो अब बताइए कौन सी की प्रेस करेंगे, इसको अगर रिपीट करना है इस फॉर्मूले को नीचे के सारे सेल्स में, व्हाट शुड आई प्रेस? कंट्रोल डी सर। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, ओके वेरी गुड, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी किया तो ये सबके टोटल आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा था B6 और C6, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया या कंट्रोल डी किया तो यहाँ पे हो गया B7 C7, यहाँ पे हो गया B8 C8, यहाँ पे हो गया B9 C9, यहाँ पे हो गया B10 C10 एंड B11 एंड C11। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? रोज मतलब चेंज हो रही है। हाँ रोज चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं नहीं हो हो रहा, रहा। कॉलम वही है और रोज चेंज होती जा रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। दैट मींस when you copy paste a formula, Excel understands the sequence and it gives you the references of the similar cell। ठीक है, वो रेफरेंस चेंज कर देता। अब एक बात बताएं, अगर मैं इसको कॉपी कर दूं पूरे को और मैं यहां पेस्ट करूं कंट्रोल V, कंट्रोल C क्या है, अब मैं कंट्रोल V करूंगा तो क्या ये आंसर सेम रहेंगे या कुछ चेंज हो जाएगा? नो सर, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं एक बार, कंट्रोल V दबाया मैंने, चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि क्या हो गया है। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, आपका रेफरेंस चेंज हो गया, ये आंसर सेम ही आ गए, लेकिन ये तुक्के से सेम आए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड कर रहा है। अगर मैं बी यहाँ पे कुछ कॉलम में सर नंबर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो आ रहा है। एग्जैक्टली अब मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, देखिए आंसर अलग आ गया। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर डाल रहा हूँ और ये सब नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं उसकी लोकेशन चेंज करके, तो उसका रेफरेंस भी बदल जाता है, उसका सेल एड्रेस भी बदल जाता है। ठीक है, तो जब हम डाउन कॉपी करते हैं तो ये सिर्फ रो नंबर को चेंज करता है, जब हम राइट कॉपी करते हैं तो ये कॉलम को भी चेंज करता है। ठीक है, तो जितना हम दूर कॉपी करेंगे, सपोज मैं यहां से ये उठाता हूँ कंट्रोल C और मैं यहां जाके पेस्ट कर देता हूँ, यहां जाके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। अब देखिए इसने क्या करा, इसने ये दो कॉलम, इसको थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि E6 और दूर ले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं यहां ले जाके पेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक सेकंड यहां से हटा के इसको फिर से कॉपी करते हैं, ओरिजिनल जो हमारा था इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको रहने देते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C और मैं यहां जाके पेस्ट करता हूँ। देखिए 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि इसने I और J इनके कॉलम्स को ऐड कर रहा है, इसमें कोई नंबर ही नहीं। तो इसने क्या किया, इसने जितना दूर मैं इससे गया फॉर्मूले से, यहाँ पे फॉर्मूला लगा था 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं 6 कॉलम दूर आया। ठीक है, 6 columns I have come from this. So what it has done is it has calculated the difference। यहाँ पे जो रेफरेंस था इस फॉर्मूले में वो कितना था? So we have copied the formula from here. So B6 to C6. So it has moved from B6 to I6। तो B से अगर I की दूरी निकालें तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स की दूरी है। तो जितना दूर आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करोगे उतना ही रेफरेंसेस चेंज हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू टू
understand this properly. I hope it makes sense to you. Are you understanding? If you have understood sir. this, Yes, sir. very Yes, good. sir. ओके, चलिए, तो ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि इट विल चेंज द रेफरेंस एज यू चेंज द सेल लोकेशन, एज यू कॉपी, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ और अब मैं ये सेम मल्टीप्लीकेशन जो है ये आगे वाले सेल में कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ये सेम ऑपरेशन हो गया है, लेकिन ये सेल का रेफरेंस चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। आई होप द वर्ड रिलेटिव रेफरेंस इज क्लियर टू यू, ठीक है। क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लियर, ठीक है। आई नीड योर फीडबैक इन बिटवीन द क्लास, सो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लियर इफ दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एब्सोल्यूट रेफरेंस। नाउ एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से एब्सोल्यूट नंबर, so what does it mean and what do you mean by the word absolute? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? कई बार हम बात करते तो बोलते हैं ना यार एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली। Sir, absolute Sir, means exactly. not measured in comparison with something else. Okay, very good. So absolute means not measured in comparison with something else. मतलब आप absolute terms में बात कर रहे हैं, that means you are not measuring it with something else. You are not giving a reference of anything, but absolute terms में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Now, if I have to explain this in Excel, that means कि suppose I want that all the numbers which are there in column 1, ये column 1 में जो नंबर है ये सब मुझे 5 से ही ऐड कराना है। मतलब ये सब नंबर जो है इसमें 5 नंबर का टोटल लगा के यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट दिस फॉर्मूला, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 आंसर आ गया, दैट इज करेक्ट। बट व्हेन आई कॉपी पेस्ट दिस फॉर्मूला, व्हेन आई यूज कंट्रोल टी, तो अब क्या हो रहा है, ये 15 को 5 से ऐड नहीं करके 65 से ऐड कर रहा है, बिकॉज द रेफरेंस हैज चेंज्ड। B7 C7 ये सेम हो गया, एब्सोल्यूट रिलेटिव जैसा ही हो गया। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कोई डिफरेंस रह नहीं गया। अब समझाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। हमें क्या करना है, आई वांट द नंबर्स written in column 1, that is 10, 15, 38, 59, 18, 23 to change when I change this formula, when I copy paste this formula, but I don't want C6 to move it from its place. 6 को वहीं रखना है, लेकिन B वाला जो कॉलम है उसमें रोज चेंज होनी चाहिए, C6 का सेल की पोजीशन चेंज ना हो। तो हम इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। इस रेफरेंस को आई एम फ्रीजिंग, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल फ्रीजिंग हियर विद रेफरेंस। तो रेफरेंस है C6 और इसको आप F4 की जब प्रेस करेंगे, यू विल सी $2 साइंस आर अपीयरिंग बिफोर C एंड बिफोर 6, दैट मींस 6 और C, इसको हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। सो अगेन आई विल राइट C6, you can type a dollar sign also, that will also work, or you can press F4। अब देखिएगा कि होता क्या है ये करने से, जब यहां करके मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है, नाउ यू विल सी दैट व्हाट हैज हैपेंड नाउ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैज हैपेंड नाउ? कॉलम 1 को देखिए और एब्सोल्यूट को देखिए, इस कॉलम पे फोकस कीजिए। आई एम जस्ट चेंजिंग द C6 कलर। चेंज नहीं हुआ सर, बाकी सब चेंज हो गया। राइट, C6 चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि 15 भी 5 से ऐड हो रहा है। ये देखिए, जब हम इस पे जाके F2 प्रेस करते हैं तो यू गेट टू सी कि हाउ दिस नंबर हैज कम। आई वांट टू सी हाउ दिस 60, आई वांट टू सी हाउ दिस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लास रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग शेयर होती है, तो अगर कोई अनवांटेड साउंड है तो वो क्लास में जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यू आर अटेंडिंग अ प्रोफेशनल क्लास, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू वांट टू आंसर एनीथिंग, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई अंडरस्टैंड दैट पीपल आर अटेंडिंग फ्रॉम होम, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। चलिए,
So I was explaining that when you are keeping this 7 C6 पे हमने डॉलर लगाया, हमने इसको फ्रीज कर दिया, तो जब मैंने ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया तो you will see that the references of row 1 is changing, that is the row number is changing, B7, B8, B9, B10, B11, but everywhere you will see that this C6 is C6 only. यहाँ पे ये C6 ही रहा है, यहाँ पे C6 C7 हो गया, C8 हो गया, C9 हो गया, C10 हो गया, C11 हो गया. So are you getting now what is the difference between a relative reference and an absolute reference? Yes, Is sir. it now clear? Okay. So C6 is freezed. So that means absolute हमने reference लगाया है. ठीक है? तो दो references हमने समझे, एक relative और एक absolute. Now it is the time to understand the third reference, which is a mixed reference. Now mixed का मतलब क्या होता है? It will have the flavor of both. What? Relative as well as mixed. ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, उसमें लिखा है हेडिंग जो है उसमें लिखा है मिक्स्ड रो कांस्टेंट, और उसके आगे वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है मिक्स्ड कॉलम कांस्टेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रो? दीज आर रोज. तो हम रो को कांस्टेंट रखना चाहते हैं लेकिन कॉलम मूव कराना चाहते हैं, और इसमें हम कॉलम कांस्टेंट रखना चाहते हैं और रो मूव कराना चाहते हैं. नाउ कैन एनीवन हेल्प मी कि हाउ कैन आई कीप द रो कांस्टेंट? सपोज I want to multiply this 10 with this 5. ठीक है? अब ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल टी करके. तो ये देखिए आपस में सारे नंबर्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए आपस में एक दूसरे से. ठीक है? ऑल दीज नंबर्स हैव मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, बट आई डोंट वांट दिस. व्हाट आई वांट इज कि द रो शुड रिमेन कांस्टेंट. रो का मतलब क्या है कि रो 6 मतलब रो 5, ये जो 5 नंबर है ना ये कांस्टेंट रहे, बाकी ये सब मूव होते रहे, 10, 15, 13 ये सब मूव हो, लेकिन 5 हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, 5 नहीं मूव करे. तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे डॉलर. ठीक है? अब देखिए क्या होता है. आई हैव नॉट अप्लाइड F4 अगर मैं लगा देता तो C6 सी कॉलम को भी फ्रीज करता और रो को भी फ्रीज करता. अभी क्या किया है इसने, कॉलम को फ्री रखा है लेकिन रो को फ्रीज कर दिया. नाउ आई एम जस्ट यूजिंग कंट्रोल टी. नाउ if you see the formula what has happened, if you see the formula what has happened now, let me just move it and let me just reduce the size of these columns so that you can see the data properly. ठीक है? सो वी आर ऑन द मिक्स्ड रेफरेंसेस. अब हम समझ रहे हैं. देखिए B6, B7 ये सब ठीक रहा, लेकिन ये सिर्फ C6 पे रहा. ठीक है? मतलब ये सारे नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता था, वो ही यहाँ पे हुआ है. ठीक है? अब आप बोलेंगे सर अगर हम F4 करते और ये सारा तो भी तो C6 ही फ्रीज रहता ना, तो क्या डिफरेंस आता? ठीक है? तो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है? और अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको रो फ्रीज रखने का फायदा क्या होता है. व्हेन यू वांट टू कीप द रो फ्रीज एंड कॉलम वेरिएबल, दैट मींस योर नंबर विल बी पिक्ड फ्रॉम द डिफरेंट रोज, फ्रॉम द सेम रो बट कॉलम विल बी डिफरेंट. ठीक है? ये हम आगे वाले में सीखेंगे, बट बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहा था कि आप रो कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप नंबर के आगे डॉलर लगाएंगे, अगर आप कॉलम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप अल्फाबेट के आगे डॉलर लगाएं. ठीक है? अभी मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट समझाता हूँ कि कॉलम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं. तो सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट नंबर. So once Okay. repeated. व्हाट शुड आई रिपीट? So ये Row डॉलर constant? वाला सिग्नेचर. ओके ओके फाइन. देखिए डॉलर क्या होता है, डॉलर साइन इज यूज्ड टू फ्रीज अ सेल. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू फ्रीज, व्हाट वी वांट एज अ आउटपुट. ठीक है? एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, मैं आपको एक नई शीट में समझा रहा हूँ. ठीक है? Suppose there is a number 10 and I am putting 1, 2, 3,
and I will create a series of 1 to 10. Okay. So this is number 1 to 10, and we have 10 on the top. Okay. Now what I want is, suppose we have 20. Okay. Now what I want is that every number, all these numbers should be multiplied by 20, and I want the result over here. Okay. How can you do so? Tell me. So what I want is 1 multiplied by 20, then 2 again multiplied by 20, and 3 again multiplied by 20. Okay. So we will put some border over here so that we get to understand what we are trying to do. Okay. So I will put a left border and I will put a top border. Okay. So I want all these numbers here should be multiplied by this number 20, and I should get the result here. Okay, everyone getting it? Now I have put this multiplication, and now what I do is I double click on this. Now, are you getting the right answer? Tell me. What I want is I want multiply No, sir, wrong. the numbers in the rows by constant number 20 in the column. In the column C, or in the cell, basically C2 we can say. बताइए ये आंसर सही आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है. ठीक है. Why it is not coming properly? Because you see that the reference is changing. This is the beauty of Excel, that Excel क्या करता है, रेफरेंसेस को कॉपी करता है. तो हमने ये पहले ये फॉर्मूला लगाया था जिसमें हमने B3 को मल्टीप्लाई किया था C2 से. ठीक है. फिर हमने ये कॉपी पेस्ट किया नीचे फॉर्मूला, तो यहाँ पे B4 हो गया और C3 हो गया. मतलब as I'm moving down, one step down, it is copying the references also. It is moving the references also. ठीक है. Now who asked me to repeat this? Shruti. Shruti. Okay. Now Shruti, understand this thing. What we want is, we want that 20 should not move. ठीक है. 20 अपनी जगह से ना हिलना चाहिए, और ये 1 से लेके 10 मूव होने चाहिए. तो what should I do? So I will freeze this C20. ठीक है. I will freeze this 20. I will press F4. ठीक है. F4 key is the shortcut key to freeze the value in any cell. ठीक है. C2 को आपको फ्रीज करना है, अपने F4 दबाए, फ्रीज हो गया. अब देखिएगा हम सेम चीज करेंगे कंट्रोल D के साथ. अब क्या रिजल्ट आ रहा है? Is this the result that I wanted? Yes, sir. Yes, Is sir. this the result that I wanted? Yes. तो पहले क्यों नहीं आया? तो पहले रेफरेंस चेंज हो गया था सर. पहले रेफरेंस चेंज हो रहा था, अब हमने उसको रोक लिया है ना, रेफरेंस को फ्रीज कर दिया है. अब आप किसी भी फॉर्मूले पे किसी भी जाके अगर आप ये देखेंगे तो C20 जो है, C2 जो है वो C2 ही है, बाकी B12 ये सब चेंज होता रहता है. गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रेफरेंसिंग, फ्रीजिंग. ठीक है. अब मैं यहाँ से डॉलर हटा देता हूँ तो भी देखिए कुछ चेंज होगा क्या? इसको हम वापस से कंट्रोल D कर देते हैं. मैंने डॉलर हटा दिया था तो भी कुछ चेंज नहीं हुआ. ठीक है. अब एक काम करते हैं, एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं 30. ठीक है. और मैं ये सब कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड V. अभी देखिए क्या हुआ, यहां से रो का रेफरेंस चेंज हो गया. ठीक है. ये रो जो 20 थी, 1 थी, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया था B3 था, यहां जब मैंने कॉपी किया तो ये क्या हो गया, C3 हो गया. लेकिन D अपनी जगह से नहीं था. ठीक है. ये जो है, ये रो जो है कांस्टेंट रही, मतलब कॉलम चेंज हो गया लेकिन रो कांस्टेंट रही. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ आई इंट्रोड्यूस वन मोर सेल कॉलम एंड मैं यहाँ पे 40 करता हूं और मैं ये सारे कॉपी करके पेस्ट करूंगा. नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर? पहले 2 सेल का आंसर बताइए. चैट बॉक्स में सब लोग टाइप करके डालिए कि क्या आंसर आना चाहिए जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा इसको. 24,000. पहले का आएगा 24,000 और उसके बाद वाले का क्या आएगा? 4,80,000 या 48,000?
48,000 आएगा। देखे 48 करेक्ट। तो 24, 48, 72, 96 ये आंसर आ रहा है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने रो को फ्रीज कर रखा है, तो ये रो नहीं हिल रही, लेकिन कॉलम को खुला छोड़ रखा है, तो कॉलम चेंज हो रहे हैं लेकिन रो सेम है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रो एंड कॉलम फ्रीजिंग। आई होप आई हैव सॉल्व द क्वेरी, मतलब आपको आंसर मिल गया प्रॉपर्ली जो भी पूछ रहे थे क्वेश्चन। श्वेता? Yes, sir. Okay, now let us do this exercise. This is very wonderful exercise. ठीक है, अगर आपने एक्सेल शीट डाउनलोड करके रख रखी है और आप लैपटॉप से लॉगिन है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस सेशन के बाद इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दिस सेल रेफरेंसिंग विल बी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स 1 to 10 and these are rates. ठीक है, and these are the quantity sold on different dates 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये रेट है अलग अलग और ये क्वांटिटी है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू मल्टीप्लाई these numbers with these quantity and you want to get the answers here. ठीक है, now can anyone tell me how we should do it? बताइए, बिना सेल रेफरेंसिंग के या फ्रीजिंग के आप कर सकते हैं क्या ये? What you have to do is, I will write down what you have to do here. Alt H M C, multiply rates of product 1 to product 10 with quantity 1 to quantity 5. This is what you are supposed to do. Tell me, is it possible without freezing any cell? अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे बताइए? I am waiting for an answer. Yes, tell me. Can we do or not? बताइए, समझ में आया सबको क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो समझ में तो आ गया, बट करना कैसे वो नहीं पता। करना कैसे वो देख रहे हैं। देखिए देखिए, टेक योर टाइम। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, कोई भी चीज अगर नहीं आती है ना तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, और आप थक सकते हो, एक्सेल नहीं थकेगा। आप बुरा मान जाओगे कि यार आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, एक्सेल बुरा नहीं मानता है। ठीक है, तो ये लड़ाई है एक्सेल और आपके बीच में, मतलब आप पहले थकते हो या वो पहले थकता है, या तो वो क्रैश हो जाएगा या आप क्रैश हो जाओगे, या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रायल एंड एरर ही करना है, हम भी वही करेंगे। तो 19 into 1। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला लगाया है, ऑल्ट एच AC, सेंटर में कर देते हैं इसको। अब मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि एक ही फॉर्मूला लगाऊं और ये सारा आंसर जो है ना कंट्रोल D कंट्रोल R करूं और ये सब भर जाए। लेकिन अभी कंट्रोल D डाउन कॉपी करता है, कंट्रोल R राइट कॉपी करता है। ये सब करने से सिर्फ पहले रो पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ठीक है, आई एम जूमिंग इट एंड लेट अस फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट रो। लेट अस फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट रो। ठीक है, इन द टेबल। तो ये वाली रो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, इसी पे फोकस कीजिएगा आप थोड़ी देर के लिए। क्या ये आंसर सही आ रहा है? 19 into 2, 19 into 3, 19 into 4, 19 into 5, क्या ये सही आंसर आ रहा है? नहीं। 19 और 38 ये ठीक No, है? sir. ये तो ठीक है ना, 19 और 38? Yes, अरे sir.
ये तो ठीक है, बट 19 इंटू 3 क्या होता है? 19 इंटू 3 इज 57, बट आंसर आ रहा है 114। ये क्यों आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ये 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 456 कैसे आया? क्योंकि ये 114 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 2280 कैसे सर आया? क्योंकि रेफरेंस चेंज 456 हो रहा को है सर। एग्जैक्टली रेफरेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? 19 इंटू ये हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब आपको देखो, यू ऑलवेज हैव टू कीप द एंड इन माइंड। क्या बोला? क्या माइंड? एंड इन माइंड। एंड का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट। आपको चाहिए क्या? अगर ये आपके दिमाग में होगा ना, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस डू स्टेप बाय स्टेप। पहले हम रो करें या कॉलम करें? बताइए। कॉलम। कॉलम। चलिए कॉलम करते हैं। तो अभी देखिए, कॉलम की बात करी तो कॉलम में नंबर चाहिए, मतलब 19 को मल्टीप्लाई करना है, 14 को करना है, 10 को करना है, 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? कि ये जो नंबर है यस यहाँ सर। पर, ये तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए 1, ठीक है। इसका मतलब फ्रीज किसको करना है? सर कौन N6 से को। सेल? किसको फ्रीज करना है? N6 को या O5 को? N6 को सर। N6 को फ्रीज कर दें। O5 को। सर O5 ना? O5 को। O5 को, ठीक है। देखो, नजर हटी और अच्छा रो कर दुर्घटना रहे घटी। हैं हाँ। हाँ, नजर हटी और दुर्घटना घटी। सर नजर नहीं आपने सर हटी मेरे थी। को लगा कॉलम कर रहे फ्रीज करके करना है। मैंने बोला कॉलम को करना है ना। मैंने ही बोला कॉलम में आंसर चाहिए, मतलब रो में भी आंसर लाना है हमको, कॉलम में भी लाना है। लेकिन पहले मैंने पूछा था कि क्या करना है। पहले रो। यस सर यस। पहले रो की बात हुई थी, पहले कॉलम की बात हुई थी, फिर रो की बात हुई थी। अब कॉलम का मतलब कॉलम को फ्रीज रखना पड़ेगा 1 को, ताकि सारे जो रो में नंबर है वो सेम रहे, ठीक है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सर एक बार बता दीजिए ना, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ये नीचे जाते हैं आप तो रो होती है, और जब ऐसे राइट में जाते हैं तो कॉलम आता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 जो लिखा है ये कॉलम के अंदर लिखा है, और ये जो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 लिखा है ये रो में लिखा है। रो इज ऑर्टिकल। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, O5 को फ्रीज कर दिया। अब क्या करेंगे, जहां तक आपको रिजल्ट चाहिए आप सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी, और देखिए क्या आंसर आया। क्या ये सही आंसर आ गए? टेल मी। यस सर। यस सर। ये डाउट वाला यस है या कॉन्फिडेंस वाला यस है? यस सर। यस सर सही आया है। सही आया है। अनडाउटफुल, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक आ गया। चलिए, डाउट नहीं है किसी को भी किसी तरीके का। चलिए नाउ, अब यही चीज आपको आगे भी तो करनी है, हर कॉलम में करनी है। तो अगर मैं इसी को आगे कॉपी पेस्ट कर दूं, कंट्रोल सी के बाद यहां पर कॉलम में, तो क्या आंसर सही आ जाएगा? ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। ये जो है, इसमें हमने किसको फ्रीज किया था? O5 को। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं तो सब जगह आंसर क्या आएगा बताइए? तो O5 ही वो लेके चलेगा, आंसर नहीं आएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा हूं मैं। गलत है। अरे गलत तो सेम आएगा, आएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। हाँ सेम आएगा। क्यों? क्यों? टेल मी व्हाई। रेफरेंस वही है सर। क्योंकि O5 को फ्रीज किया है तो वो 19 जो भी N वाले कॉलम है वो O5 से ही मल्टीप्लाई करेगा। 1 से ही और मल्टीप्लाई करेगा। वो O5 1 में से ही क्या है? मल्टीप्लाई करेगा। O5 में 1 है, वो 1 से ही 1 है। मल्टीप्लाई करेगा, और सेम आंसर आ गया है। दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ जी। यस सर, हाँ जी, ठीक है जी। तो ऐसा तो करना नहीं है हमको, तो अब क्या करना है? ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसको रखा हमने, O5 को पूरा ही फ्रीज कर दिया था। लेकिन आपको O फ्रीज करने की जरूरत है क्या, या सिर्फ रो फ्रीज करने की जरूरत है? यहाँ पर सर O को नहीं फ्रीज करेंगे। O को नहीं फ्रीज करते हैं,
तो बोलते ओ बोले यार मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आपको 1 से है ना मतलब, मुझे तो खुला छोड़ दो। तो भैया ठीक है तू जा। तो 5 को आई थिंक तो वो करने से होगा। देखो हमने ओ को आजाद कर दिया, बोले तुम काहे बंद हो रहे हो पिंजरे में, तुम तो आजाद हो, तुम घूमो। सिर्फ ये जो रो है ना इसको फ्रीज करना है, समझ में आया? अभी देखिए, अभी देखिएगा कमाल। अब इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, और करते हैं आगे पेस्ट। ये ट्रायल एरर चल रहा है ना, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा आंसर सही आएगा, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या ये सही जवाब आया है? यस सर सही आएगा ये। नो सर, नो सर। नो सर, क्योंकि देखिए एक सेकेंड, एक सर सेकेंड, सभी ठीक एक है। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए तो सही। अरे जनाब थोड़ा सा हौले हौले। कॉलम 2 का जवाब बिल्कुल ठीक आया है। यस कॉलम 2 मतलब ये जो 2 वाली क्वांटिटी है इसका जवाब बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। मतलब 19 इंटू 2 ये प्रॉपर आया है, लेकिन इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो गलत हो गया ये तो। 14 3 जा 84 नहीं होता, 10 3 जा 30 होता है, 60 आ रहा है, यहाँ से गड़बड़ हो गया है। यहाँ ठीक क्यों आ गया है और यहाँ हुआ क्या है, पहले ये सोचेंगे समझेंगे हुआ क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपने किसको खुला छोड़ा था, ओ को, 5 को फ्रीज करा था। तो जब इधर और इधर किसको खुला छोड़ रखा है, N6 पूरा ही खुला है, मतलब N कॉलम भी खुला है और रो भी खुली है, ठीक है। अब जब इस फॉर्मूले को इधर से इधर पेस्ट करता हूं तो क्या रेफरेंस मूव होगा बताइए, N6 बन जाएगा O6। हेलो, यस सर, गेटिंग सर। N6 गेटिंग इट, N6 क्या बन जाएगा O6, N6 will become O6, N6 will become O6 and 1 this O5, O की जगह क्या हो जाएगा P, बिकॉज O is free, तो वो P बन जाएगा। Yes, sir. लेकिन 5 जो है वो 5 ही रहेगा, ठीक है, वो 6 नहीं बनेगा, रो 6 नहीं बनेगी। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे क्या हो रहा है, N6 क्या बन जाएगा O6, क्योंकि हम सेम रो में है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये O6 बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, P5 बन गया। 5 मतलब रो तो वही रही लेकिन कॉलम चेंज हो गया। बट यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर जब ये 19 मल्टीप्लाई हो 1 2 3 4 5 से, तो ये 1 2 3 4 5 वाली रो चेंज नहीं होनी चाहिए और 19 वाला कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। तो सर हमें n को फ्रीज करना पड़ेगा। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू ऑल। अब देखिए n को कर देते हैं फ्रीज, क्योंकि जो रेट्स है ना ये किस कॉलम में, n नहीं बदलना चाहिए और क्या चेंज होनी चाहिए, रो, ठीक है। तो ये हमने फ्रीज कर दिया। अब एक काम करते हैं, ये सर, अब सबको ठीक आएंगे डिलीट कर सब। देते हैं। अब सब ठीक आएंगे ऐसा लग तो रहा है। एक ही बार में, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। जय बजरंगबली की। क्या बात है, आंसर Yes, सही sir. आ गया अब एक ही बार में? नहीं सर। ये कैसे हो, नहीं, क्यों नहीं, सर अभी चेक कर कौन सा गलत है, कौन सा गलत है बताइए जरा। थोड़ी 19। मैथ्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी माइंड में थोड़ी सी आपको। हाँ सर ठीक है सब। सब ठीक है, सब ठीक है सर। यस सर सब ठीक है। यस सर। सब ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन ये सब हुआ कैसे, दिमाग में सर क्वेश्चन वो आया फ्रीज कैसे? करने से। फ्रीज करने से। तो ये ताकत है सेल फ्रीजिंग की, दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल एंड दिस द पावर ऑफ सेल फ्रीजिंग। तो ये जो टेबल थी, मैंने इतना बड़ा टास्क दिया था आपको, ठीक है, और हमने जो डेटा लिया ना सिर्फ 5 कॉलम का डेटा है और 1 रो का डेटा है। अगर ये 50 कॉलम होते तो क्या आप 50 बार फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते? नो सर। अगर यहाँ पे फ्रीज मैं करते सर। इसको ड्रैग कर देता हूं, अगर मैं मान लीजिए इसको ड्रैग करके इफ आई मेक इट टिल 50, ठीक है, यहां तक मैं ले गया और अब ये 21 क्वांटिटी तक है मान लीजिए आपके पास,
और आपको बॉस बोलता है चलो इसको फिल करो टेबल को, यहाँ पे इन सबको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर चाहिए, तो कितने टाइम में आप ये करके दे दोगे अपने बॉस को, बताइए। 5 सर seconds. आपके हेल्प से बहुत जल्दी। हाँ मेरी हेल्प से बहुत जल्दी, तुरंत तुरंत। तो उसको बोलेंगे अच्छा जाके आइए, थोड़ा सा घूम के आइए, फिर हम आके बताएं आपको, ठीक है। तो क्या करना है, ये एन, ये जो है रो कॉलम, इसको फ्रीज करेंगे, तो हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, मतलब यहाँ पे डॉलर लगाएंगे एंड वी विल कीप दिस रो फ्री। रो को फ्री रखेंगे क्योंकि जब ये नीचे पेस्ट होगा तो हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, रेफरेंस चेंज हो इसका, रो के बाद इसके बाद 7 आए। और जब ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में हमें कॉलम को फ्री रखना है। किसको फ्री रखना है? कॉलम। क्योंकि 5 जब ये आगे जाएगा तो कॉलम चेंज होना चाहिए लेकिन रो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो रो में क्या है, 5 के पहले आप लगा देंगे डॉलर। तो देखिए सिर्फ मैंने 2 जगह डॉलर किया है, एक पहले वाले सेल में कॉलम को फ्रीज किया है और आगे वाले सेल में रो को फ्रीज किया है। और अब ये करके ये पूरा डेटा जहां तक भी हमारे को चाहिए रिजल्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और 2 ही बटन में काम हो जाएगा, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। और अब आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई भी अगर चैलेंज कर दे और बता दे कि ये गलत है तो हम एक्सेल पढ़ाना छोड़ देंगे। नो सर बिल्कुल ठीक है ये। किसी भी सेल में अगर कोई वैल्यू गलत आ रही हो तो तुरंत सूचित किया जाए। सर इसमें जो कंट्रोल डी और आर प्रेस करते हैं वो कंट्रोल डी और आर साथ में प्रेस करते हैं? हाँ पहले नहीं, एक साथ नहीं करते हैं, पहले आई प्रेस कंट्रोल डी देन आई प्रेस कंट्रोल आर। सो बेसिकली कंट्रोल डी इज कॉपिंग टुवर्ड्स द डाउन, नीचे कॉपी करता है, और कंट्रोल आर राइट में कॉपी करता है। तो आप पहले कंट्रोल आर भी दबा सकते हैं, फिर कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। इट इज जस्ट दैट यू आर कॉपिंग समथिंग। सपोज आई हैव रिटन आलोक ओवर हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आलोक, और मुझे ये इन सारे सेल्स में आलोक लिखा हुआ चाहिए, तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा, सब जगह देखिए आलोक आ गया। मुझे नीचे भी आलोक लिखा हुआ चाहिए, मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, नीचे आ गया। तो इट इज लाइक दिस, ओके सर। ठीक है। सो हाँ। प्लीज रिपीट लास्ट वंस। ओके सो रुद्राक्ष सिंह, चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं फॉर द लास्ट टाइम। एंड this was a very simple small example, not simple I will say because you are learning for the first time, तो आप लोग के लिए शायद सिंपल ना हो, लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती हैं। लेकिन फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद दिस रेट। सो बेसिकली आई विल यूज दिस एज अ फॉर्मूला, ठीक है। बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आई नीड टू फ्रीज द फर्स्ट कॉलम। ये जो कॉलम एन है ये फ्रीज रहे, रोज मूव कर सकती हैं। तो एक एक सेल को स्टडी करेंगे। पहले इस सेल में से मुझे कॉलम को फ्रीज करना है, मैं कॉलम के आगे डॉलर लगा, ठीक है। उसके बाद मुझे आगे जो ओ वाला सेल है, मतलब ये जो सेकंड सेल है O1 O5 जिसमें 1 लिखा है, उसमें से रो को फ्रीज करना है, एंड रो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑलवेज। सो आई विल पुट अ डॉलर ओवर हियर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, बेसिकली आपको क्या समझना है कि जब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं टुवर्ड्स डाउन टुवर्ड्स राइट, व्हाट रिजल्ट इट शुड गिव मी। या कौन सी चीजें, कौन सा रेफरेंस चेंज होगा, कौन सा रेफरेंस सेम रहेगा, बस उतना सा ही समझना है, काम हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो जब आप कह रहे हैं कि मैंने कॉलम एन को फ्रीज रखा है, तो ये कॉलम नहीं चेंज होगा। आप कितनी भी जगह पे इसको पेस्ट कर लें राइट टुवर्ड्स राइट, तो कॉलम एन ही रहेगा। अगर मैं इस कॉलम को फ्रीज नहीं करता तो ओ पी क्यू आर ये सब कॉलम चेंज होते रहते हैं, रेफरेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कॉलम चेंज नहीं हो रहा, पहला हमारा ये काम हो गया कि हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया। दूसरा हमने क्या काम किया कि हमने रो को ओपन रखा है, मतलब जितनी भी रेट आ रही है वो ओपन है, कॉलम सेम है, रोज ओपन है। तो ये काम हो गया। जब क्वांटिटी में हम जा रहे हैं तो क्वांटिटी में हमें कॉलम ओपन चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी कॉलम्स में लिखी हुई है 1 2 3 4 5, कॉलम ओपन रखा है लेकिन रो एक ही रो में है सारी क्वांटिटीज, रो को फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको इस बार, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि जब हमने कॉपी डाउन किया है तो इसने क्या चेंज किया, इसने क्या चेंज किया है, मैं आपको इसके फॉर्मुलेस दिखा देता हूं, या यहाँ पे आप क्लिक करके देख लें F2। इसने
रो का नंबर चेंज किया, कॉलम चेंज नहीं किया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे रो का नंबर चेंज किया, कॉलम चेंज नहीं किया है, और यहाँ पर भी रो सेम है और कॉलम भी सेम है। ठीक है, अब मैं इसको, ये जो कॉलम है इसको आगे वाले कॉलम में कॉपी करूंगा। ये सारे कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने कंट्रोल सी दबाया है जो आप रूटीन में करते हैं, और कंट्रोल वी दबाने वाला हूं, कंट्रोल वी। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये कॉलम फ्रीज रहा n, लेकिन रो चेंज हो गई। यहाँ पे ये रो फ्रीज रही 5, लेकिन कॉलम चेंज हो गया। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम s आ रहा है, और यहाँ पे रो 6 आ रही है, n आ रहा है। यहाँ पे रो 11 हो गई, यहाँ पे रो फ्रीज है। तो हमने एक रो को फिक्स किया, एक कॉलम को फ्रीज किया। आपको बस यही समझना है कि कौन सा रो फ्रीज होना है और कौन सा कॉलम फ्रीज होना है। यही, इसी का नाम है सेल रेफरेंसिंग एंड फ्रीजिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगर ये क्लियर है तो आई एम गिविंग यू होमवर्क। ठीक है, ये शीट जो है Okay. T2, ठीक है, आई एम गिविंग यू होमवर्क। छोटा सा होमवर्क करना है, एंड इसका अगर आपने सही सॉल्व कर दिया दैट मींस आपको सेल रेफरेंसिंग एंड फ्रीजिंग अच्छे से आ गया सॉल्व। करना क्या है मैं बता देता हूँ, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टास्क है, और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मल्टीप्लाई बाय ग्लोबल फैक्टर। देयर आर 3 कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और जैन और फैब का इनका कुछ डेटा दे रखा है। मान लीजिए सेल्स का डेटा है या प्रॉफिट है या कुछ भी, एनीथिंग, एंड देयर आर सम ग्लोबल फैक्टर दैट इज 0.2, मंथली फैक्टर है 0.3 एंड 0.5। ठीक है, ये जैन और फैब के लिए है, ये एक ही कॉमन फैक्टर। इसमें आपको वैल्यूज बननी है इन द ग्रीन सेल एंड इन द ग्रे सेल। ये ग्रीन सेल में आपको क्या करना है, कंपनी ए को जैन के ग्लोबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैन और फैब दोनों में ग्लोबल फैक्टर 0.2 ही है, दैट मींस ऑल दीज नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ओके, एंड द आंसर यू शुड गेट हियर। ठीक है, सेकंड में आपको क्या करना है, कॉलम ए बी सी में जो है उसमें आपको मंथली फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एंड देयर इज अ मंथली फैक्टर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मंथली फैक्टर फॉर जून, जनवरी एज वेल एज फेब। तो फॉर योर हेल्प व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्लोबल फैक्टर तो 0.2 है, और मंथली फैक्टर जैन का है 0.3, और फेब का है 0.5। इज इट क्लियर? हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है सर। हाँ, तो अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब सेल रेफरेंसिंग आपको आ गया है। ठीक है, सो दिस इज द होमवर्क फॉर द डे, एंड बिफोर आई क्लोज, इसको याद कैसे रखना है सर? ठीक है, कि ये जो आपने सिखाया है सेल रेफरेंसिंग, ये फ्रीजिंग, उसके बाद एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंसिंग, ये सब याद कैसे रखना है, और कैसे याद रखना है कि F4 से रेफरेंस लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए आई हैव मेड सम नोट्स ओवर हियर, ये नीचे आपको नोट्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना भाषा हमें याद नहीं रहती, तो उसके लिए मैंने इसके लिए एक, इसको बॉलीवुड सॉन्ग से कनेक्ट किया है। ठीक है, और वो सॉन्ग बता देता हूँ, वो गाना याद मत रखना, वो कंसेप्ट याद रख लेना, बस वो कंसेप्ट याद रखने के लिए। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल। ठीक है, बताइए कौन सा है? काजोल और शाहरुख खान के बहुत सारे गाने आए हैं, लेकिन एक गाना है जिसमें काजोल ने येलो साड़ी पहन रखी है, ठीक है, और रेगिस्तान में खड़ी है। वाला सर, डीडीएलजे वाला। साड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। सर वो वाला है, सूरज हुआ मध्यम चांद चले। क्या बात है ना? तो सूरज हुआ मध्यम और चांद चलने लगा। ठीक है, तो उसमें एक लाइन आती है, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। ठीक है, तो ये सेल रेफरेंसिंग में भी ऐसे ही है कि मैं ठहरा रहा और जमीन चलने लगी। तो रो कॉलम से ये बोलता है कि मैं ठहरा रहा, क्या ये मेरा पहला। ठीक है, सर आज भी होगी चलिए। म्यूजिकल क्लास? हाँ, इसकी बात करेंगे, अभी पहले ये कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज विद रिलेटिंग टू एब्सोल्यूट मिक्स एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। ठीक है, इफ यू आर फीलिंग, डेटा वाला Yes, sir. एक्सेल शेयर कर। हाँ, ये डेटा मैं फिर हमेशा ही से, एंजॉय करते हैं क्लास। थैंक यू मैं शेयर कर दी। चलिए, अब मैं आपको ये डेटा शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, सब लोग इसको रिवाइज करेंगे, और कल की क्लास वापस 9 बजे होने वाली है।
ठीक है, हम एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे और डोंट कम विदाउट प्रैक्टिसिंग। अगर आप बिना प्रैक्टिस करे आएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा क्लास में, है ना। तो सब लोग अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपने नाम के साथ एक्सेल फाइल मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है। दोज हु शेयर द व्हाट्सएप द फाइल इन ऑन व्हाट्सएप ओनली दे विल बी अलाउड टू एंटर द क्लास टुमारो, ठीक है। ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आई विल बी शेयरिंग द फाइल इन द ग्रुप एज वेल, ठीक है। और जो लोग नए हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, जो रेफरेंस से आए हैं या लिंक देख के आए हैं, आई एम गिविंग माय रेफरेंस माय मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स आल्सो। यू कैन सेव माय नंबर एंड यू कैन व्हाट्सएप मी दिस फाइल विथ योर नेम। इस फाइल को आप रीनेम करके इसमें अपना नाम ऐड करके मुझे भेजेंगे, ये कंप्लीट करके, ठीक है। एंड विथ दिस आई एम